Assalamu alaikum. I'm Mohsina Naveed, the Admin Services Manager of KIMS, which was established in 1993 and is one of the oldest institutes offering O and A level in Pakistan. We are currently offering classes from grade 6 to A level. Today, I'll be acting as host for a question and answer session with our A level science faculty. But before we begin, let me thank all of you for your positive feedback on our earlier videos, and please subscribe to our YouTube channel. And if you want to receive notifications for our future videos, please click on the bell icon. Our A-level faculty really needs no introduction, but I proudly present Mr. Asad Jameel, our A-level bio teacher, Mr. Amjad Ali, our A-level mathematics teacher, Mr. Zafar Iqbal, our A-level chemistry teacher, Mr. Azhar Mahmood, our A-level physics teacher, and Kamran Malik Saab, the principal of KIMS. He's not really a science teacher, but he always has very useful information to share with O and A-level students and parents. तो session start करते हैं Zafar साहब. My first question is to you. In sciences, A-level chemistry is thought of to be, as a very difficult subject. So what can students do to get a good grade in the subject? Okay. There is no doubt that A-level chemistry is very difficult as compared to O-level chemistry. And the reason is A means there is advanced level. So the knowledge in A-level chemistry is very deep. So those students who take, you can say, full commitment and who want to get good grades in A-level chemistry, they must work hard and they must keep their time according to the syllabus and the subjects. So I hope they can get the grade, good grade. Planning, basically planning. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. अजहर साहब, एक्चुअली मैं आपसे पूछती हूँ, बट ये क्वेश्चन सभी साइंस टीचर्स के लिए है. सो आफ्टर यू आंसर्ड, आई वुड लाइक असद साहब, जफर इकबाल साहब एंड ऑल्सो कामरान साहब टू आंसर दिस क्वेश्चन. बड़ा ही मेन क्वेश्चन है वेदर स्टूडेंट्स शुड ऑप्ट फॉर कॉमर्स और साइंसेज एट ए लेवल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. एंड व्हाट शुड स्टूडेंट्स बेस दिस डिसीजन ऑन. तो ये हम जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद अजहर साहब. जी, एक्चुअली ए लेवल्स जो है दैट्स गोइंग टू डिसाइड द करियर ऑफ एनी स्टूडेंट. ऑफ कोर्स योर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से यू वांट टू गो एनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स, तो यू मस्ट टेक कॉमर्स साइड, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स. these subjects will help out you. But if you want to do engineering or you want to do medicine, obviously then sciences are better for you. But if your personal commitment for that subjects are not there, obviously sciences will make your life more miserable. More problems will be there. So make your life easy, make selection of subjects according to your career, your choice, your taste, that's it. जी, असद साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं असद साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ. और अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप वो सिलेक्ट ना करें ए लेवल में, क्योंकि अदरवाइज़ आप उस प्रोफेशन में मिसफिट हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगी. और साइंस सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली आपको कमिटेड होने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप ट्रबल में होंगे. ज़फ़र इकबाल साहब आप बताइए, योर थॉट्स ऑन दिस. देखिए जी, ऐसा है कि अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप अपने आगे लाइफ में साइंस को परस्यू करना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली आप साइंस पढ़ना चाहिए. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके ओ लेवल ग्रेड्स का. अगर आपके ओ लेवल के ग्रेड्स अच्छे हैं तो मेरे ख्याल से कि आपको साइंसेस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने आप को फिट कर सकते हैं. एंड कामरान साहब, योर टेक ऑन दिस. जी शुक्रिया जी, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने का मौका. हालांकि मैं साइंस टीचर नहीं हूँ. दो वर्ड से मैं पिक करूँगा बात को, जिस तरह हमारे कोलीग्स ने कहा यहाँ पर, और दोनों वर्ड ए से स्टार्ट होते हैं. एक है एबिलिटी और एक है एप्टीट्यूड. और एबिलिटी और एप्टीट्यूड दोनों डिटरमिन करते हैं परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस जो है वो एक इक्वेजन है, मैथमेटिकल इक्वेजन. एबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एप्टीट्यूड, वह मल्टीप्लिकेशन का साइन है. मतलब अगर एबिलिटी ज़ीरो है, एप्टीट्यूड जो मर्जी हो, परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी. एबिलिटी जो मर्जी है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी. तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसमें. तो एबिलिटी, जैसे ज़फ़र साहब ने कहा, रिफ्लेक्ट होगी आपके ओ लेवल के रिजल्ट्स के साथ. आपके ओ लेवल के रिजल्ट साइंसिस के ये डिटरमिन करते हैं और काफ़ी हद तक ये इंडिकेट करते हैं कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर साइंसिस. दूसरी बात आ गई एप्टीट्यूड की. एप्टीट्यूड मैं शायद थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा एबिलिटी के साथ, क्योंकि एप्टीट्यूड के साथ वो चीज़ें फुलफिल होंगी जो कि साइंस में अच्छा ग्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट है. और वो क्या है? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क.
अगर मुझे एक चीज़ से मोहब्बत नहीं है, मैं उसको डेली बेसिस पे नहीं कर सकता। ये बात समझने की है। मोहब्बत होगी तो कमिटमेंट होगी, कमिटमेंट होगी तो मेरी ए लेवल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगी। तो अगर मुझे एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो क्या आपका एप्टीट्यूड इसके लिए है? क्या आप लॉन्ग आवर्स की सिटिंग एट मैनी डेज एट अ स्ट्रेच कर सकते हैं? और देखिए, मेरी ये वीडियो मैं इस पर पूरी रिकॉर्ड करवाऊंगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर, और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। साइंसेस तभी पढ़िए, आपकी डिटर्मिनेशन पूरी उसके साथ है, क्योंकि साइंसेस अगर आप पूरी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे रिजल्ट लेंगे तो साइंस कॉलेज में जाएंगे। अदरवाइज अगर साइंस में एवरेज ग्रेड ले लेंगे और ACCA में जाना पड़ेगा आपको, तो फिर आप क्या ज़रूरत थी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें और C और D और E ग्रेड ले लें और ACCA कर रहे हों, फिर अकाउंटिंग ही पढ़ें पहले दिन से। तो साइंसेस पढ़नी है तो एक ही ऑप्शन है, टॉप पे हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके लिए ज़रूरी वही दो चीज़ें जो मैंने शुरू में कही, एबिलिटी और एप्टीट्यूड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कामरान साहब आपसे है, इज बिजनेस अ यूजफुल सब्जेक्ट टू बी स्टडीड अलॉन्ग विद ए लेवल साइंसेज? जी, बिज़नेस के बारे में तो ज़ाहिर है नाम से भी ये सजेस्ट करते हैं कि इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के साथ पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है। सो बहुत अच्छी बात है अगर कोई बच्चा बिज़नेस को पढ़ रहा है इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के साथ, क्योंकि ये बेसिकली एक ही फील्ड के सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्वान्टिटेटिवली तो आपसे 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे अगर आप बिज़नेस, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, पर क्वालिटेटिवली मीन नॉलेज वाइज शायद आपको 2.5 सब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही है, बिकॉज कंटेंट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स सिग्निफिकेंटली ओवरलैप, देयर आर मेनी कॉमन थिंग्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो इसलिए ये लगता है कि ये आप पढ़ तो 3 रहे हैं लेकिन नॉलेज आपको 2 की मिल रही है या 2.5 की मिल रही है। साइंसेस के साथ मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका टाइम टेबल स्कूल का अलाउ करे तो आप बिज़नेस पढ़ें, क्योंकि बिज़नेस में जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे कि टर्म्स हैं इन्फ्लेशन, GDP, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, डेबिट क्रेडिट या बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये टर्मिनोलॉजी से आमतौर पर एक साइंस स्टूडेंट अवेयर नहीं होता। तो अगर एक बच्चा साइंसेस के साथ बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट लेता है तो उसकी नॉलेज बेस ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हो सकती है। तो बिजनेस स्टडीज़ इज़ ए गुड कम्बिनेशन, इज़ ए गुड चॉइस फॉर ए स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग प्योर साइंसेस। थैंक यू। अमजद साहब, आप प्लीज़ बताएं कि फॉर अ स्टूडेंट स्टडिंग ए लेवल बायो, शुड ही और शी बी स्टडिंग ए लेवल मैथ्स एज वेल अलॉन्ग विद बायो? Yes. In my opinion, in A level, the most popular combination is physics, chemistry, math, and biology. Because with this combination, all the options are open. Even you can go for medicine also. So, in my opinion, it is good to take biology as well. मैथमेटिक्स विद बायो, ठीक है। असद साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जी बिल्कुल, मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम द ओ लेवल, आपको ज़रूर उसको ऑप्ट करना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारा हमारा ऐसा पोर्शन है बायोलॉजी ए लेवल में जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते हैं। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में बेटर परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो मैथ भी पढ़ रहे हों और आपके पास ऑप्शंस भी ओपन रहती हैं कि आप मेडिसिन में चले जाएं या इंजीनियरिंग में आगे ऑप्ट कर लें। और इसके अलावा अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट्स के, उनको मुश्किल होता है कि वो आगे MBBS में एडमिशन ले लें या अपने उस डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकें जिसमें वो जाना चाह रहे हैं बेसिकली। तो मैथ अगर आपने पढ़ा तो आपके लिए एक ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रहती हैं कि आप किसी भी फील्ड में एक ऑप्शन वाली बात, और दूसरा इट हेल्प्स इन बायो इन इट। जी, बायो में भी इटसेल्फ ये हेल्प करती है, स्पेशली इन ए लेवल कोर्स। जी, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असद साहब आप ही से है। नहीं, मैं इसमें ज़रा अगर मुझे इजाज़त दीजिए कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया कि MBBS में जब बच्चा ले रहा है चांस जाने का, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, ग्रेड थोड़े से नंबरों से मिस कर देता है वो, तो उसके पास मैथ एक बड़ा अच्छा बैकअप प्लान है। तो मैं इकनॉमिक्स के टीचर पे आपको ये बताना चाहूँगा और अकाउंटिंग के टीचर के तौर पर कि अगर आपने अच्छा पढ़ा है ए लेवल में मैथ्स और ए लेवल में आपने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन आप ए लेवल के बाद पढ़ सकेंगे इकनॉमिक्स भी अच्छे तरीके से अगर आपका ए लेवल का मैथ्स अच्छा है। तो ए लेवल मैथ इज़ ए गुड फाउंडेशन एंड गुड सब्जेक्ट चॉइस, चाहे आप साइंसेज में जाना चाहें तो चाहे आप बायो की फील्ड में जाना चाहें। तो इसलिए बायो पढ़ना एक अच्छा रिकमेंडेड सब्जेक्ट है। जी, तो असद साहब आप बताएं, फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो अगर वो बच्चे OA लेवल वाले हैं, आर दे एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू दोज यू नो द FSC स्टूडेंट्स, स्पेशली व्हेन दे आर सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हमारा ए लेवल कैम्ब्रिज स्टडी प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा आपके कॉन्सेप्ट डेवलप कर देता है, और जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और विद इन 1
ईयर आपको फील होने लगता है कि आप दूसरे स्टूडेंट से ज़रा बेटर हैं और टीचर्स की नज़र में भी आप ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ए लेवल प्रोग्राम जो है ये आपको एक कॉन्सेप्ट बेटर डेवलप करता है एज़ कम्पेयर टू एफएससी जो हमारा लोकल सिस्टम इस वक्त चल रहा है। तो मेरा तो यही एडवाइस है आप सब लोगों को कि आप ए लेवल प्रोग्राम ज्वाइन जी, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अजहर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी ऐसे है कि बिल्कुल डिसएडवांटेज एज सच स्टडीज़ में तो नहीं है, लेकिन अगर इस एस्पेक्ट को देखा जाता है कि वाइल यू गोइंग फॉर द एडमिशन तो वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा कंपेटिटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपका बहुत अच्छा एफएससी, लेट्स से यू गॉट प्लस 1100 मार्क्स, it's not sure that you're going to be admitted in government medical colleges. So here point is that what's your choice, whether you want to just government medical college or private medical college is another choice for you. And my recommendation, if you're doing A levels, so you should be having this option very clear that private medical colleges must be your option. And once you are into the medical colleges, as my dear friend has said, obviously you make a difference. तो इसमें मैं अगर इसको समराइज़ कर दूं दोनों की बात को कि एक होती है एंट्रेंस रिक्वायरमेंट, एक होती है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है आपको एडमिशन लेने के लिए, और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ये है कि क्या रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के प्रोग्राम में अच्छा परफॉर्म करें। तो ए लेवल स्टूडेंट्स में भी न्यूमेरिकली एट ए स्लाइट डिसएडवांटेज एफएससी के स्टूडेंट्स के मुकाबले में एट द टाइम ऑफ एडमिशन मीन एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में हो सकता है ए लेवल स्टूडेंट्स का स्लाइट डिसएडवांटेज हो, पर कोर्स रिक्वायरमेंट में ए लेवल स्टूडेंट्स आर एट फार बेटर पोजीशन कंपेयर टू एफएससी स्टूडेंट, क्योंकि जो करिकुलम जो रिगरस स्टडीज़ वो करके आते हैं वो उनको पूरी लाइफ के लिए लाइफ टाइम लर्नर बनाती है और उनको हाई गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। तो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट की हद तक ए लेवल स्टूडेंट्स आर एट एन एडवांटेज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम ऑफ एजुकेशन। जी, और दूसरा असद साहब से पहले डिस्कशन हो रही थी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की भी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी आप देखें कि उसको भी अगर आप कंपेयर करें तो एफएससी में आपको एट अ टाइम्स 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स स्टडी करें, आपका टाइम डिवीजन प्लानिंग सारी चीज़ बेटर हो जाती है और ज़्यादा आप एफर्ट कर सकते हैं अपने मेन साइंस सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, बजाय इसके कि आप इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और उर्दू, इंग्लिश जो वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ, उनको भी आपको स्टडी करना पड़ता है। तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है आपको डेफिनेटली। और अच्छा ये मैं ज़रूर रिकमेंडेशन दे दूँ उन बच्चों को जो एफएससी का प्लान करें ओ लेवल के बाद कि उनको ओ लेवल में उर्दू बी की बजाय उर्दू ए पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर एफएससी की उर्दू जो 200 नंबरों की है शायद 200 नंबरों की शायद वो उसमें बड़ा चैलेंज आ जाता है बच्चों को जो ओ लेवल बी पढ़ के वो ओ लेवल में उर्दू बी पढ़ के जाते हैं एज ए सेकंड लैंग्वेज उर्दू, तो वो स्ट्रगल करते हैं और बहुत बच्चे एफएससी के 1 साल करने के बाद वापस ए लेवल में आ जाते हैं। तो ये इस तरह का प्लान ना करें, बड़ा क्लियर प्लान करें, बड़ा सोच के आपका टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं है। आपका टाइम इस वक्त इतना कीमती है, जो अच्छा काम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, और कोई अच्छा काम अगर नहीं करेंगे कोई मिस कर देंगे तो अपना नुकसान भी 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बड़ा क्रूशल वक्त है, इसमें सोच समझ के इंटेलिजेंट डिसीजंस कीजिए। Zafar साहब, my next question is to you. To study engineering, is A-level chemistry a must? क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट से भागते हैं, बट क्या उन्हें पढ़ना पड़ेगा if they want to do engineering later on? इन पाकिस्तान स्पेशली मैं ये जानता हूँ कि आप बग़ैर ए लेवल केमिस्ट्री के आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते। सो अगर आपने पाकिस्तान में स्पेशली इंजीनियरिंग करनी है तो फिर आपको डेफिनेटली ए लेवल केमिस्ट्री को अडॉप्ट करना है, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं दोस्ती करनी पड़ेगी केमिस्ट्री से। करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं। थैंक यू। अजहर साहब, आप बताइए सम टिप्स यू कैन गिव स्टूडेंट्स टू गेट अ बेटर ग्रेड इन फिजिक्स। जी यकीनन फ़िज़िक्स के अंदर अगर आप फ़िज़िक्स को अपने एक सब्जेक्ट के तौर पर ऑप्ट करने जा रहे हो तो आपके यहाँ उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होना सब्जेक्ट की वो बहुत ज़रूरी है, जिसको एप्टीट्यूड भी कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद वंस यू ऑप्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कमिटमेंट विद द सब्जेक्ट, योर थॉरो हार्ड वर्क, बिल्कुल, योर रेगुलर वर्क, that is prerequisite, that is required. And if you go along with your teacher in your class, you do your assignments, you do worksheets, you do proper revision of the syllabus, obviously that the things are not becoming difficult for you. Do not try to heap of the ideas for you, just make small steps, regular work, routine work,
that can make a success in the subject for you. जी थैंक यू और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी सीन स्टूडेंट्स हु डन वेरी वेल इन ओ लेवल फिजिक्स बट दे स्ट्रगल इन ए लेवल But may I add one Ji, more ji. point? Because why they struggle, they do not doing regular work. exactly. They just think that they have done in the last 2 or 3 months in the O level, they have done a wonder. Obviously, in A levels, you can't do the wonder in 2 or 3 months. You have to do regular routine work. You have to work with the teacher, and you have to do the practice of the questions. बिल्कुल। Then the things won't be difficult. Then obviously you are going to have that much marvelous grade in A level physics as what you got excellence in O levels. थैंक यू सो मच अदर ये साहब जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है, इसमें अगर हम फिजिक्स की जगह कोई भी सब्जेक्ट डाल लें तो टिप्स जो हैं उसके लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी किसी भी और सब्जेक्ट के लिए। तो मैं इसमें ये ज़रूर बात कहना चाहूँगा, जो अदर साहब ने बात कही कि 2-3 महीने में नहीं होगा ये, तो ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर 4 टर्म में डिवाइड कर लें ए लेवल के कोर्स को, फर्स्ट टर्म सितंबर से नवंबर तक, दिसंबर तक, फिर जनवरी से अप्रैल मई तक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सितंबर से दिसंबर और फिर जनवरी ऑनवर्ड्स, तो 4 टर्म में अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म फर्स्ट टर्म है। अगर आपने फर्स्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो चांसेस ये हैं बहुत कम कि आप इसमें आप सर्वाइव कर लोगे। ये बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है कि अगर पहले 10 ओवर में एक टीम के 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो आखिरी 10 ओवर में जो स्लॉगिंग करके बड़े स्कोर करने थे वो नहीं होंगे। तो आखिरी 4 महीने में आप दिन रात मेहनत करके अगर समझते हो कि बहुत पढ़ लोगे, वो उसी बच्चे के लिए पॉसिबल है जिसने पहले 4 माह पढ़े। और पहले 4 माह से मैं कहूँगा कि पहला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो कलीग्स हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और बाकी किसी भी सब स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप महीने के 3 टेस्ट लेते हैं मिसाल के तौर पर, या महीने में 2 टेस्ट लेते हैं अपनी क्लास में, तो फर्स्ट मंथ में 4 टेस्ट लें, ताकि बच्चों को पहले महीने में पता लगे कि ए लेवल का चैलेंज क्या है। और ये नहीं है कि आपका कोई ए लेवल में कोई पीरियड है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। ए लेवल करने का फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है, एक ही तरीका है, रोज़ का काम रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी। आज अदर साहब ने जो आपको क्लास में पढ़ाया है, अगर आज ही जाके पढ़ लोगे तो शायद आधे घंटे में समझ जाओगे, और यही टॉपिक जो अदर साहब ने आज पढ़ाया है आप 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो उससे आपको 2 घंटे में प्रॉब्लम हो। तो ये रेसिपी और ये टिप हमको बार बार देंगे कि फर्स्ट टर्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, फर्स्ट डे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ये आखिरी दिनों तक चीज़ें डालेंगे तो ये जब अक्मुलेट हो जाएंगी तो फिर मैनेज नहीं होंगी। डोंट लेट थिंग्स पाइल अप। बिल्कुल। अमजद साहब प्लीज़ हमें बताएं द इम्पोर्टेंस ऑफ ओ लेवल एड मैथ एंड ए लेवल फर्दर मैथ, और दूसरा ये कि क्या बच्चे कैन दे टेक दीज सब्जेक्ट्स अप एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स? Right. AdMath should not be taken as major subject because after O level you need IBCC equivalence, and AdMath is not considered there with many combinations. So, and AdMath is a good subject if you think you have good aptitude in maths, then you should take it as 9th subject. ओके And the other thing about further mathematics, in A level you can take further maths as major subject if you want to go some further abroad, like in Pakistan, in LUMS you can take math, physics and further maths, then further maths is considered as a major subject. ओके But in other universities further maths has no importance. राइट So if you have a good maths, then you think about this to take A level as major subject. जी A level further maths. मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जी एक तो ये कि एड मैथ और मैथ्स ओ लेवल में अगर आप दोनों पढ़ रहे हैं, IBCC का फार्मूला दोनों में से जो बेटर ग्रेड है वो काउंट करेगा। इसी तरह ए लेवल में अगर फर्दर मैथ्स और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, अगेन IBCC इनमें से जो बेहतर ग्रेड है वो काउंट करेगा। नंबर 2, बिल्कुल मैं अमजद साहब से एग्री करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज इस सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं कर रही मोस्ट ऑफ देम, लेकिन फिर वही बात जो हमने शुरू में की थी, कोर्स रिक्वायरमेंट और एंट्रेंस रिक्वायरमेंट। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट के वक्त हो सकता है फर्दर मैथ्स कंसिडर ना करे, ना ही यूईटी कंसिडर करे, ना ही किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज कंसिडर करे, और ना ही फास्ट कंसिडर करे, ना ही GA करे, और ना ही शायद लम्स करे। टू एन एक्सटेंट लम्स करता है, लेकिन अगर ना भी करे, कोर्स रिक्वायरमेंट के लिए फर्दर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है। आप एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं, फर्दर मैथ्स कोर्स रिक्वायरमेंट के लिए नहायत उम्दा और यूजफुल सब्जेक्ट है। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में चूँकि IBCC चूँकि मैथ और फर्दर मैथ्स का ग्रेड काउंट करता है, ईदर ऑफ द टू, और यूजली मैथ में ग्रेड बेहतर होता है तो फर्दर मैथ्स का ग्रेड काउंट नहीं होता, तो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में ये शायद कंसिडर ना करें, लेकिन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट में ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। वो उसमें यही चीज़ आ जाती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के साथ तो फिर आप एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसे पढ़ सकते हैं।
लेकिन मेजर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली जैसे कामरान साहब ने कहा कि एंट्रेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ लम्स में कंसिडर हो रहा है और कहीं कंसिडर नहीं होगा। तो फर्दर मैथ्स के लिए ये है कि फर्दर मैथ्स अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं पर भी पढ़ते हैं तो जो फर्दर मैथ्स के कोर्स हैं वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज के साथ ओवरलैप करते हैं। तो अगर आप फर्दर मैथ्स पढ़कर कहीं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इधर इन पाकिस्तान और अब्रॉड, तो मैथ्स के कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। Thank you, Mr. Saab. Kamran Saab, can you tell us about IBCC's formula of conversion for preparing equivalences? And how does it affect a student's chances of admission in colleges after A level? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि ये चूँकि बड़ा ही इफेक्ट करता है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जो ओ ए लेवल से रिलेटेड हैं, पेरेंट्स को। पर आज भी मैं अगर समझूँ तो 90% चीज़ें शायद लोगों को पता हों, 10% चीज़ें अक्सरियत को नहीं पता होती हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बच्चों के साल ज़ाया हो जाते हैं। और मिसाल के तौर पर एग्जामिशन पाक स्टडी इस्लामियात की ओ लेवल की किसको अवेलेबल है किसको नहीं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि सिर्फ उन लोगों को एग्जामिशन है जो कि ओ लेवल पाकिस्तान से बाहर करते हैं। नहीं, पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात एंड उर्दू आर एग्जेम्प्टेड फॉर स्टूडेंट्स हु टेक बोथ ओ एंड ए लेवल फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने ओ लेवल पाकिस्तान से बाहर से किया है और ए लेवल पाकिस्तान से कर रहे हैं तो फिर ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम्प्ट नहीं है। तो बड़े बच्चों का इसमें टाइम ज़ाया होता है, बेचारे ओ लेवल करके आते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिल जाती है मैट्रिक की, वो ए लेवल में एडमिशन ले लेते हैं। जब ए लेवल का एडमिशन खत्म होता है और वो जाते हैं तो एफएससी का इक्विवेलेंस लेने, तो उनको बताया जाता है चूँकि उन्होंने ये ए लेवल पाकिस्तान से किया है तो उनको इक्विवेलेंस नहीं मिलेगी। कन्वर्जन फार्मूला बिल्कुल सिंपल उन्होंने रखा हुआ है और वो ये कि ए स्टार अगर आपका आता है उन सब्जेक्ट में जिनको IBCC कंसिडर करता है वो उसमें आपको 90% मार्क्स मिलेंगे, 90, चाहे आपका असल स्कोर कुछ भी था। और बी पे 85, सी पे 75, डी पे 65, ई पे 45 और यू ग्रेड पे 0 नंबर। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने जो भी आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं। आप रेलिवेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं वो डिटेल ना बता सकूं शायद आपको। मेरी एक पूरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि IBCC का फार्मूला किन किन सब्जेक्ट्स को कंसिडर करता है। तो वो जो एक मिथ है कि जी ए लेवल में नंबर कट जाते हैं, ये गलत बात है। नंबर नहीं कटते, नंबर की एक एवरेज तय कर ली। मिसाल के तौर पर आपका ए ग्रेड आया है और आपने ए ग्रेड लिया है 80 नंबर लेके, तो आपको 85 मिल जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर मिल गए। और अगर आपने ए ग्रेड लिया है 86 लेके तो आपको 85 मिलेगा, तो फिर आप शायद कह लें कि आपका एक नंबर कटा, लेकिन असल स्कोर तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। तो ये एक एवरेज स्कोर बन गया 85, इसमें मार्क्स की कोई रिडक्शन नहीं है, लेकिन एक एवरेज उन्होंने कन्वर्जन के लिए बता दी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ए लेवल में ग्रेड मिलते हैं, FSC में नंबर मिलते हैं। तो ग्रेड्स को नंबरों के बराबर करने के लिए किसी तरीके से कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो इसमें कोई मार्क्स की कटौती नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है FSC और ए लेवल के बच्चों का, तो ये बात एक हद तक ठीक है कि ए लेवल का जो बच्चा है वो मैक्सिमम 990 मार्क्स ले सकता है आउट ऑफ 1100, क्योंकि ए स्टार के 90 मार्क्स हैं। अगर सब सब्जेक्ट्स में भी ए स्टार आ जाए, मीन्स 11 के 11 सब्जेक्ट जो हैं, 8 ओ लेवल के और 3 ए लेवल के, सब में भी 90 नंबर ले लें, ए स्टार ले लें, तो 990 से ज़्यादा नंबर नहीं बनेंगे। तो इस लिहाज से एक डिसएडवांटेज है। लेकिन पहले हमने जैसे बताया कि कोर्स रिक्वायरमेंट में और प्रेपरेशन वाइज ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें अदर साहब को मौसम से मदद के साथ मैं अदर साहब को तरफ ये शिफ्ट करना चाहूँगा क्वेश्चन। नहीं, मैं एक्चुअली आपके बाद उनसे पूछने वाली थी। पूछने वाली थी तो अदर साहब से, क्योंकि अदर साहब की बेटियों ने माशाल्लाह ए लेवल करके वो मेडिकल कॉलेज में गई हैं और मेरा ख्याल है कि दे डूइंग एक्सेप्शनली वेल, पोजीशन ले रही हैं, पंजाब लेवल की पोजीशन ले रही हैं। तो मैं अदर साहब से ये दोनों एंगल पे चाहूँगा बात करें। एंट्रेंस के वक्त क्या डिफिकल्टी आई ए लेवल की इनकी बेटियों को जिन्होंने ए लेवल किया था, और जब पढ़ने गई तो उनको क्या एडवांटेज या क्या प्रॉब्लम आई, तो अदर साहब। जी ऐसे है जी कि जो ए लेवल्स जो वाकई कहा जाता है कि ए लेवल्स वाले मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस के वक्त उनको एक डिसएडवांटेज होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ए लेवल्स के अलावा FSC की है और यू गॉट प्लस 1100 मार्क्स तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बिकॉज गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस आर टू कम्पेटिटिव, just 3000 plus seats and almost 70,000 plus people are entering for the MDCAT exam. And while my daughters were going through this, it was a crucial time because they have done their A levels, and A levels they got relatively good grades. They got good grade in O levels, but obviously when you are preparing for the MDCAT exam and preparing for FSC, you have to go through the whole stuff of the FSC. Then you going for the entrance exam. So obviously it's very, very tough. It's very challenging.
Because I can quote at this stage one example. I met my friend at MDCAT when it was taking place. I met my friend over there. His daughter was having 1125 marks in FSC. 1025 out of 11. No, 1150 out of 1150, she got almost 1110 marks. And she was appearing for the MDCAT. I asked, who is appearing? He said, my daughter. And she was unable to get admission in government medical college with this much marks. 1125 out Yeah. of 1150. Yeah. And she could not get the admission. Get admission. And then I have the chance to meet that guy another time. Second time, for the last year, she is also unable to get admission. And my daughter is studying in medical college, so keep in mind your choices. Choice is what? Whether your priority is only government medical colleges. बात कर रहा हूँ, आपने ये कहा कि उस बच्ची का 1125 मार्क्स आउट ऑफ 1150 एफएससी में लेने के बावजूद 2 अटेम्प्ट के बावजूद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और आपकी बेटियों ने ए लेवल में पढ़ने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ. But what I have said, Ji, कि basically my daughters are studying in private medical college. Alhamdulillah, I can afford for that. I can pay for that. My friend was not able to afford that. That's why. But the thing is there, what I'm saying, कि with so many marks in FSC, that's not a warranty or guarantee that you're going to be admitted in a medical college, and especially in government medical colleges. And this is entrance criteria, as my friend has said, Kamran Sahab said. Obviously, the A-level student when goes to the medical college, as my friend also have said, he is also the teacher of my daughters. So he has also tell when the people go over there in the medical colleges and you answer, your professor say, hey, you have done A-levels. And that's why you can answer. That's why you have done A-levels, because when you speak, you are different. Your study is different. To reciprocate or to answer the question, your behavior is different. That makes a difference. And Alhamdulillah, my daughter, she is studying in one of the dental college, and with this tough criteria for admission, and those who have scored so many marks and they're studying in government medical colleges, she, mashallah, alhamdulillah, she is able to score second UHS position in whole Punjab. Mashallah, she has competed because they have learned. इसमें शामिल है गवर्नमेंट कॉलेज जी 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 इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ मेडिकल कॉलेजेस आर बीइंग देयर, and it means almost jitne 16 almost dental colleges she stood second, and in the first prof she got 4th position. So, but the thing is there, this position is not only just to A levels. Your hard work, Of course. your commitment, your dedication, and then the ideas you have learnt in your A levels, that makes your life more easier, more promising. जी कमरन. तो मैं ये बात आपने कि ए लेवल अगर किया हुआ है तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, जो चांसेस टू डू वेल आर मोर इफ यू डन ए लेवल. और अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना भी हुआ तो ए लेवल की डिग्री बहुत यूजफुल होगी किसी भी फील्ड में जाने के लिए कंपेयर टू एफएससी. जी एक पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे की वो ए लेवल्स में बहुत बेहतर हो जाती है. एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँ. एक्चुअली मेरे जहन में ये आइडिया आया कि अभी हम सिर्फ जस्ट फोकसिंग टूवर्ड्स द मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. द थिंग इज देयर, all the people may not be becoming doctors, all the people may not be becoming engineers. The other sciences subjects are also very important, because some of the people may have to become, after doing the engineering, they have to become a teacher. And why not to become teachers? Why not to become teachers while doing masters or your graduation in science subjects? These are open field for you, especially if you want to stay in Pakistan with physics, chemistry, with your master's degrees or with your graduate degrees. Obviously you can go to better institutions like Atomic Energy Commission, like other research organization. So your fields are not just going to be blocked, your careers are not just going to be blocked if you're not going to become doctors or engineers. तो इसलिए science subjects obviously can make your life more easier, and also obviously the other subjects can also. And at the last I will say, any good quality education, have a faith on Allah, the career will be for you. इंशाल्लाह. लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आजकल की सिचुएशन के बारे में ज़्यादा है, यू नो, बिकॉज
कोरोना की वजह से, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बच्चों के पास दे हैव एम्पल टाइम. सो व्हाट कैन दे डू टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम? तो ये मैं चाहती हूँ कि सारे ही टीचर्स इनफैक्ट आंसर करें. विल स्टार्ट इन ऑर्डर. असद साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे. आप बताइए स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी हैबिट्स को मेंटेन रखें, अपनी लाइफस्टाइल को सही रखें, क्योंकि आजकल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे लेट नाइट तक जागते रहते हैं एंड उन्हें फील नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल डेफिनेटली वो स्ट्रेस में ज़रूर आते हैं. उनके नर्व्स जो हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टडी पे कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है. तो इसके अलावा अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक रखें, और स्टडी का तो डेफिनेटली जब तक आप रिवाइज़ ना करें तो चीज़ें आपको भूल जाती हैं. दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू डू दैट. आप डेफिनेटली एक प्लान के तहत अपने रिविजन्स जो हैं वो डेली बेसिस पे करते रहें, अदरवाइज़ आपको सब कुछ भूल जाएगा और दोबारा से स्टार्ट होने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी. बिल्कुल. अमजद साहब? इसमें बच्चों को थोड़ी सी अपनी रूटीन जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए. सुबह अपना टाइम से उठें, अगर लेट नाइट सो भी रहे हैं, किसी एक दिन आपने रिलैक्स कर भी लिया तो कोई बात नहीं. जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, से क्लास है सुबह 10 बजे, तो बच्चा 10 बजे के अलार्म लगाकर सोया होता है और सुबह उठा तो वो फ्रेश नहीं है, वो क्लास में बैठा है. ही टेक सम टाइम 10, 15, 20 मिनट्स कि वो रेडी हो क्लास के लिए और फ्रेश होकर तो फिर वो बैठे. तो इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को रूटीन के साथ रखें, अपने टाइम से सोएं और अपने टाइम से उठें और फिर क्लास के टाइम से पहले रेडी होकर बैठें, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ को टाइम दे सकें. बिल्कुल. ज़फ़र साहब? आजकल जैसे कि फ़ेस टू फेस तो कुछ डिस्कशन चल नहीं रही, तो ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. मेरे ख्याल से अगर आप कोई इस तरह का सिस्टम बना लें कि डेली बेसिस पे उसको आप स्टडी करें, तो आप उससे अपना जो डेफिशिएंसी है आजकल, जो कि आप फेस टू फेस नहीं ओवरकम कर पा रहे, तो वो आपको कवर ऑनलाइन से आप उसको बहुत अच्छी एडवाइस है. अजहर साहब? जी, इट्स ए टफ सिचुएशन टू से समथिंग. सब दोस्तों ने काफ़ी बात कह दिया, लेकिन मेरा ख़ास जो बात इसमें होगी कि अपने आप के ऊपर डिप्रेशन सिचुएशन डेवलप नहीं होनी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. बिकॉज आजकल सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि हर किसी से बात करें तो वो बहुत डिप्रेशन में मुब्तला है. स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं. डिप्रेशन नहीं कीजिए. सोशल मीडिया थोड़ा पैंडेमिक सिचुएशंस का कम यूज़ कीजिए. एहतियात ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको अपने सर के ऊपर सवार नहीं कीजिए. थैंक यू साहब. कामन साहब? साहब ने बात कर दी जो मैं करना चाह रहा था. मेंटल वेल बीइंग, टेकिंग केयर ऑफ मेंटल वेल बीइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो आप इस वक्त स्ट्रेस है, नॉट ओनली रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज़, इकनॉमिक इश्यूज़ एज वेल. कई फैमिलीज इस वक्त इकनॉमिक हार्डशिप फेस कर रही हैं, घरों में प्रॉब्लम है, बच्चे फील कर रहे हैं कि माँ बाप परेशान हैं अपने माली मामलात के बारे में. ये एक जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में ज़रूर कंसर्न हो. अपने पेरेंट्स की तकलीफ़ के बारे में आपको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर इसको अपने सर पे सवार कर लेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अगर इस पर इफेक्ट होती है तो आपकी फ़िज़िकल इम्यूनिटी भी वीक होगी. दूसरी मेरी टिप ये होगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर टाइम गुजारें. कम से कम 1 आवर पूरे दिन में आप फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर गुजारें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी एज में स्पेशली आपको आदत पड़ेगी अगर, और जब रूटीन बन जाएगी, स्कूल जाना भी शुरू कर देंगे, फिर भी अगर आदत बनी होगी तो आप उस वक्त भी 1 आवर ज़रूर निकाल लेंगे. तीसरी बात कि मैथ्स आपकी आगे ए लेवल की स्टडीज़ में, यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में डिपेंड करता है आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपका रिजल्ट मैथ्स का बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओ लेवल का या ए लेवल का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एसएटी की तैयारी करें, चाहे आपने एसएटी के पेपर देने हैं या नहीं देने. लेकिन अगर आप मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैथ्स की रिवीजन करना ओ लेवल की या ए लेवल की, वो भी एक अच्छा यूज़फुल काम है. अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी मूवीज़ देखें और अपने आप को सेफ़ रखें और अपने पेरेंट्स को एक इस वक्त एक अच्छा बच्चा बन के बताएं, क्योंकि पेरेंट्स की परेशानियां कम होंगी आपको अच्छी एक्टिविटी और अच्छी रूटीन के साथ देखते हुए. थैंक यू. Thank you, Kamal Saab. So that concludes our question and answer session for today. Stay tuned for another session tomorrow with our A-level computer and commerce faculty. हमने कोशिश की आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बट इफ़ वी मिस्ड आउट ऑन एनी क्वेश्चंस प्लीज़ सेंड देम टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज थ्रू इनबॉक्स. और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को and share this video with as many people as you can so that maximum people can benefit from it. And a big thank you to all the teachers for their time, for being here, for answering all our questions, and to our viewers, a big thank you to you as well, and take care. Allah Hafiz.